Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 6 Integers. स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में, उनका एक इंट्रोडक्शन की, क्या होते हैं इंटीजर्स, कौन से नंबर से मिलके बनते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि उनको कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड देन ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स कि कौन सा इंटीजर बड़ा होगा और कौन सा इंटीजर छोटा होगा. तो टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 एंड सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First question is, write opposites of the following. We have to write opposite situations of the following given situations. Okay, so the first one is increase in weight. So you all know that opposite of increase is decrease. So it will be decrease in weight. It will be decrease in weight. Okay, next is 30 kilometers north. Now you all know that north is in upward direction, so south will be in downward direction, it's opposite, so it will be 30 kilometers south. Next is 80 meters east. Now opposite to east direction is west direction, so it will be 80 meters west. Next is loss of rupees 700. Opposite to loss is profit. We always say profit and loss, so it will be profit of rupees 700. Okay, and my next one is 100 meter above the sea level. Now students, we measure height according to sea level. Okay, so sea level is my reference level, or I can say sea level is my zero. So above sea level will be positive or plus height, and below sea level will be negative height. Okay, so it says 100 meter above the sea level, 100 meters above the sea level, so its opposite will be 100 meters below the sea level. It will be 100 meters below sea level. Okay, let's see the next question. Represent the following numbers as integers with appropriate signs. Now here are some situations and we have to represent these situations with integers and their signs. Okay, the first one is an aeroplane is flying at a height of 2000 meters above the ground. Now above the ground we generally take as positive. स्टूडेंट्स ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको अबव पॉजिटिव ही लेना है, बट स्टैंडर्ड हम हमेशा पॉजिटिव अबव द ग्राउंड ही लेते हैं और बिलो द ग्राउंड हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं. तो हम इसको भी स्टैंडर्ड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे. तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड, सो अबव द ग्राउंड विल बी प्लस, यस. एंड हाउ मैनी मीटर्स? 2000 मीटर्स, सो इट विल बी प्लस 2000 meters. Okay, next is a submarine is moving at a depth 800 meters below the sea level. Now you see below the sea level, so we will be using negative sign because it is below sea level. Okay, so we will use minus of 800 meters. Okay, next is a deposit of rupees 200. Now students, in this situation there can be two cases. Okay, first is according to customer, next is according to बैंक. सपोज मैंने 200 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करे, तो मेरे लिए वो मनी माइनस होगा, मेरी तरफ से पैसा गया है और वही मनी बैंक के पास आया है, उनके लिए प्लस हुआ है. तो अगर मैं कस्टमर हूं तो डिपॉजिट ऑफ 200 रुपीज़ विल बी माइनस 200. ओके, इट विल बी माइनस 200 बिकॉज मेरे तरफ से 200 रुपीज़ गए हैं और बैंक के पास 200 रुपीज़ आए हैं, सो इट विल बी प्लस 200 इन केस ऑफ बैंक. ठीक है, दोनों सिचुएशंस हमने वन बाय वन देखी. नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ रुपीज़ 700. अगेन यहाँ पे दो केसेस होंगे, एक कस्टमर के अकॉर्डिंग, दूसरा बैंक के अकॉर्डिंग. ठीक है, इस बार हमने विड्रॉ किए हैं तो मेरे पास पैसे आएंगे
और बैंक के पास से पैसे जाएंगे, तो मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं क्या कहूँगा, इट विल बी प्लस, सो इट विल बी प्लस 700 एंड बैंक के पास से पैसे गए हैं तो इट विल बी माइनस 700। दोनों केसेस आपको समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमको दिए गए नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं या फिर मार्क करने हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं इनको। फर्स्ट इज +5, तो +5 आपको पता है कि 0 के राइट में होता है, तो ये मेरा 0 है, +5 विल बी 1 2 3 4 5, सो दिस इज माई +5, ठीक है। नेक्स्ट इज -10, अब -10 0 के लेफ्ट में होगा, तो दिस इज 0, -1 2 3 एंड सो ऑन, एंड दिस इज -10, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज +8, अगेन ऑन द राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो इट इज +8 और जस्ट 8। नेक्स्ट इज -1, so it is close to 0 but on the left side, so this is -1, okay। Let's see the next one, -6, again on the left side because it is a negative number, so 0 -1 -2 -3 -4 -5 and -6, okay, so we have represented -6 on the number line। Let's see the next question। Adjacent figure is a vertical number line. Now we have a vertical number line here representing integers, okay। Observe it and locate the following points. We have to locate the following points in the given number line. If point D is at +8, so this is my point D, then which point is at -8, okay, so let's see, this is my 0, if this is +8, so I can write it as +1 2 3 4 5 6 7 and 8, so my -8 will be in opposite direction, वो नीचे की तरफ होगा, तो this is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, हम ऐसे सारे पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, और -8 आप देखेंगे कि मेरा है पॉइंट F, सो -8 पे है मेरा पॉइंट F। नेक्स्ट इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। अब G पॉइंट जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम देखते हैं पॉइंट G है मेरा यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि पॉइंट D +8 है, इसका मतलब 0 के ऊपर वाले सारे नंबर क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली 0 से सारे नंबर्स जो नीचे हैं वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, तो मेरा G क्या होने वाला है, एक नेगेटिव इंटीजर, सो इट विल बी अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। अब पॉइंट B और पॉइंट E के लिए मुझे इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है, तो हम लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। हमको कौन से पॉइंट्स के लिए लिखना है, B एंड E, तो सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज माई पॉइंट B, सो इट इज +4, सो पॉइंट B इज +4। सिमिलरली पॉइंट E मेरा कहाँ है, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में, एंड इट इज -10, सो पॉइंट E इज -10। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। कौन से पॉइंट की सबसे लीस्ट वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि लीस्ट वैल्यू मतलब मैं नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा देखूंगा या फिर सबसे लेफ्ट वाला देखूंगा। इस केस में सबसे नीचे वाला पॉइंट देखेंगे, तो सबसे नीचे वाला पॉइंट है पॉइंट E, और अभी अभी हमने देखा था इसकी वैल्यू क्या थी, -10, सो इट विल बी पॉइंट E जिसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, -10, इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज
arrange all the points in decreasing order of value. Now I have to arrange all these points in decreasing order of the value. The greatest number will be in the beginning, and you all know the greatest number will be at the top. So it is point D. Okay, so first will be point D, then it will be point C, then point B, then A, then it will be H, G, F and E. Okay, so it will be point H, then after that point G, then next to that is point F, and the minimum or the last is point E. So I have arranged all the points in decreasing order. D is the greatest and E is the least. Okay, let's see the next question. Following is the list of temperatures of 5 places in India on a particular day of the year. यहाँ पे 5 places की टेम्परेचर दिए गए हैं एक पर्टिकुलर डे पे. देखते हैं. सबसे पहले सियाचिन 10 degrees below 0 degree Celsius, शिमला 2 degrees below 0 degree, अहमदाबाद 30 degree above 0 degree Celsius, then Delhi 20 degrees above 0 degree and lastly श्रीनगर 5 degrees below 0 degree. स्टूडेंट्स, अब आपको पता होगा कि 0 डिग्री से ऊपर हम क्या लेंगे? पॉजिटिव. यस, करेक्ट. और 0 डिग्री से नीचे वाले टेम्परेचर्स हम लेंगे नेगेटिव. तो अब क्वेश्चंस देखते हैं. राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम. ओके, अब हमको ये टेम्परेचर्स इंटीजर्स के फॉर्म में लिखने हैं. ठीक है, वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले है सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री. अब बिलो 0 डिग्री क्या होने वाला है? माइनस. सो इट विल बी -10 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट इज शिमला 2 डिग्रीज बिलो 0 डिग्री. अगेन बिलो इट विल बी नेगेटिव. सो इट विल बी -2 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज अहमदाबाद 30 डिग्रीज above 0 degree. So it is above. I will take it as plus. So it will be plus 30 degrees Celsius. Next is Delhi 20 degrees above 0 degree. Again above will be plus. So it will be plus 20 degrees Celsius. And last is Srinagar, which is 5 degrees below 0 degree. So below is minus. Yes, correct. So it will be -5 degrees Celsius. So it will be -10, -2, +30, +20 and -5 degrees Celsius for the following 5 places. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. यहाँ एक नंबर लाइन दी गई है जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है डिग्री सेल्सियस में. प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट टेम्परेचर. अब हमको यहाँ पे सिटी प्लॉट करनी है उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं, इनको हम वन बाय वन प्लॉट करेंगे. फर्स्ट इज सियाचिन एट -10 डिग्रीज. तो अब 0 यहाँ पे है, -10 कहाँ पे होगा? उसके लेफ्ट में. तो -10 इज दिस. सो दिस पॉइंट विल बी सियाचिन. ठीक है. नेक्स्ट इज शिमला एट -2. सो -1 -2. सो दिस पॉइंट इज -2. सो इट विल बी शिमला. ठीक है. देन अहमदाबाद +30 डिग्रीज. सो इट इज हियर +30 डिग्रीज राइट टू द 0. सो इट विल बी अहमदाबाद. ठीक है. नेक्स्ट इज दिल्ली एट +20 डिग्रीज. +20 भी राइट में होगा, यहाँ पे +20 है. सो दिस विल बी दिल्ली. एंड लास्ट इज श्रीनगर एट -5. अब -5 कहाँ होगा? लेफ्ट में. तो दिस विल बी श्रीनगर. ठीक है. तो हमने पांचों सिटीज को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया उनके टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन. हमको यहाँ कुछ पेयर्स दिए गए हैं, हमको उनको देख के बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में लाई करेगा. ठीक है. तो पहले देखते हैं 2 and 9.
अब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में लाई करेंगे, तो 2 इज हियर एंड 9 विल बी हियर। सो राइट में कौन सा है? 9, तो 9 इज ऑन द राइट साइड ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट इज -3 and -8, अगेन both are negative, both will be on the left of 0. So this is -3 and this is -8. So -3 is on the right side of -8. Okay, next is 0 and -1. You all can see this is 0 and this is -1. So 0 is on the right side of -1. Next is -11 and 10. Here without the number line also you can tell, because one number is positive and other is negative, और आप सबको पता है कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से राइट साइड में लाई करेंगे। हम नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, हम +10 अगर यहाँ पे कहीं बनाएंगे तो वो इस तरफ बनेगा +10। सिमिलरली -11 लेफ्ट साइड में बनेगा यहाँ पे -11। सो इस केस में +10 इज ऑन दी राइट साइड ऑफ -11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं -6 and 6. अगेन यू कैन टेल विदाउट नंबर लाइन, बिकॉज वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। सो दिस इज +6, दिस इज -6. सो आई विल से 6 इज ऑन दी राइट साइड ऑफ -6. नेक्स्ट इज 1 and -100. Here also you can tell, because 1 is positive, it will be here, and -100 will be on the left side somewhere after this -100. Okay, so 1 is on the right side of -100. हम बिना नंबर लाइन के भी बता सकते हैं, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। Okay, and we have to write them in increasing order. We have to write all the integers between these two numbers and in increasing order. Okay, so the first one is 0 and -7. Now you all know which is the greater number, 0, and -7 is the smallest. So we will start close to -7, क्योंकि हमको increasing order में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा -6, क्योंकि हम राइट साइड में बढ़ते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं, तो -7 से राइट में आएगा -6, फिर -5, देन -4, देन -3, -2 एंड -1। क्योंकि 0 और -7 के बीच में लिखना है तो हम 0 नहीं लिखेंगे। ये हैं 0 और -7 के बीच के इंटीजर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट है -4 एंड 4। अगेन हम -4 से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड में चलेंगे ताकि हम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा -3, देन -2, देन -1। अब -1 के बाद आएगा 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स, देन 0, देन 1, देन 2 एंड 3। ओके, सो it is in the increasing order between -4 and 4. Next is -8 and -15. Which is the smaller number? -15. Yes, correct. हम कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं। हम जब भी दो नेगेटिव नंबर से, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है और जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटा नंबर होगा, तो -15 इज द स्मॉलर नंबर। सो आफ्टर -15 विल बी -14। हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, then -13, -12, -11, -10 एंड -9। -8 से पहले तक के हमको इंटीजर्स लिखने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट इज -30 एंड -23। अगेन विच इज स्मॉलर? -30। यस, करेक्ट। सो हम -30 के पास से लिखना स्टार्ट करेंगे। सो -30 के राइट में आता है -29, then -28, -27, -26, -25, then in the end -24। तो ये है नंबर्स -23 और -30 के बीच में इंटीजर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 4 नेगेटिव नंबर्स ग्रेटर देन -20।
Okay, so I have to write 4 negative integers. I have to write negative integers, but they should be greater than minus 20. So greater than minus 20 means they should lie on the right side of minus 20. So we can write like minus 15, minus 18, minus 10, or minus 5, minus 2. All are greater than minus 20. You can write any 4 of them. Okay. Write 4 integers less than minus 10. Now I have to write 4 integers which are less than minus 10. मुझे minus 10 से छोटे लिखने हैं 4 integers. अब छोटे लिखने हैं मतलब हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे. तो हम लिख सकते हैं माइनस 12, माइनस 14, माइनस 20, माइनस 80. इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं हम माइनस 10 से छोटे. ठीक है. सो दीज आर 4 integers which are less than minus 10. Okay, let's see the next one. For the following statements, write true or false. If the statement is false, correct the statement. हमको true या false बताना है और statement को भी correct करना है अगर वो false है तो. First one, minus 8 is to the right of minus 10. अब देखते हैं minus 8 कहाँ पे होगा? यहाँ पे. और minus 10 कहाँ पे होगा? यहाँ पे. तो माइनस 8 इज टू दी राइट ऑफ माइनस 10. यस करेक्ट. माइनस 8 माइनस 10 के राइट साइड में है. सो इट इज ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट इज माइनस 100 इज टू दी राइट ऑफ माइनस 50. अब स्टूडेंट्स अगर हम नंबर लाइन को लेफ्ट साइड में इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा चलेगा. माइनस 49, देन माइनस 50, फिर माइनस 51, फिर ऐसे हम चलते जाएंगे. फिर हमको जाके कहीं मिलेगा माइनस 100. ठीक है. तो अब कह रहा है माइनस 100 इज टू द राइट ऑफ माइनस 50. माइनस 100 यहाँ पे कहीं आएगा, माइनस 50 यहाँ पे कहीं आएगा. तो ये रॉन्ग है. माइनस 100 इज टू द लेफ्ट ऑफ माइनस 50 क्योंकि वो उससे छोटा है. सो दिस इज फॉल्स. And we have to correct the statement. So instead of right, we will be writing left. Minus 100 is to the left of minus 50 on the number line. ठीक है. Next देखते हैं. Smallest negative integer is minus 1. False. माइनस 1 लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है. ये मैंने आपको बताया था क्योंकि हम माइनस 1 से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो इंटीजर्स छोटे होते जाएंगे. सो smallest negative integer is minus 1. It is false. And what is the correct statement? It should be largest or greatest. Largest negative integer is minus 1. Next is minus 26 is greater than minus 25. Again you can imagine number line will look something like this. Minus 24, minus 25, then minus 26, and minus 27 and so on. Okay, so minus 26 is this one, minus 25 is this one. So it is saying minus 26 is greater than minus 25. So clearly it is false because minus 26 is on the left of minus 25. So it is smaller than minus 25. And the statement is false. Okay. Let's see the next question. Draw a number line and answer the following. हमको यहाँ पे नंबर लाइन बनानी है और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of minus 2? ठीक है. तो अगर हम minus 2 से स्टार्ट करें और 4 स्टेप्स चले to the right तो देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे. So we have to start at minus 2. Okay. And we have to move 4 numbers to the right side. So it will be 1, 2, 3 and 4. So we will reach plus 2. क्लियर है. हमने माइनस 2 से स्टार्ट करा और 4 स्टेप्स चले राइट साइड की तरफ तो हम पहुंचेंगे प्लस 2 की तरफ. नेक्स्ट, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1. अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 नंबर्स चलेंगे लेफ्ट की तरफ, तब हम देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे. सो वी स्टार्ट एट 1 एंड 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट. सो 1, 2, 3, 4 and 5. So we will be reaching -4. Okay.
Then the next one, if we are at -8, अब हम कहाँ हैं? -8 पे. On the number line, in which direction should we move to reach -13? अब हम ऑलरेडी -8 पे हैं, हमको कहाँ पहुँचना है? -13. तो हमको और लेफ्ट में चलना पड़ेगा. ठीक है, तो हमको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट में. और कितने स्टेप्स मूव करना पड़ेगा वो देखते हैं. हमको -13 पे पहुंचना है, तो अगर हम -8 से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम पहुंचेंगे -9, -10, -11, -12 एंड देन -13. तो हमको कितने स्टेप्स चलना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इफ वी आर एट -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1? अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? -6 से. So this is -6, okay? And in which direction should we move to reach -1? Let's see where is -1. So -1 is at this position. So we have to move right, okay? So we have to move in the right direction. And let's see how many steps. So we will start at -6. So it will be 1, 2, 3, 4 and 5 steps. So towards right we have to move 5 steps. Okay, clear है? If we are at -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1? So we will say 5 steps towards the right. ठीक है, तो students, this finishes off our exercise 6.1. Okay, I hope you have understood every question. In the next video we will see the addition of integers. Till then, goodbye. See you in the next lecture.